A very good morning, students. Today I am going to explain you second chapter of Footprints Without Feet, that is the thief's story, written by Ruskin Bond. First of Now I'll tell you the theme of the story. This lesson has simple story with deep message. It is about a thief Hari Singh. He befriends Anil, a 25 years old young man who makes his earning by writing. Anil is a good fellow. Hari Singh meets him in a wrestling match. He takes Hari Singh at his house and teaches him how to read and write. He trusts him, but Hari Singh waits for the right moment to steal. He steals money and tries to go from there forever, but he cannot do so as his conscience makes him stop. He comes back to Anil's house because he wants to be an educated and respectable man. Anil does not show that he knows about his theft, instead, he accepts him. In this way, we see how Anil, who is kind at heart, reforms Hari Singh's life. एक डीप मैसेज के साथ इस लेसन की कहानी बिल्कुल सिंपल है। ये एक चोर हरी सिंह के बारे में है। वो अनिल को अपना दोस्त बना लेता है, जो कि 25 इयर्स का एक नौजवान आदमी है, यंग मैन है, और लेख लिखकर यानी कि आर्टिकल लिखकर अपनी आजीविका कमाता है। अनिल एक अच्छा इंसान है। हरी सिंह उसे कुश्ती के मैच में मिलता है और वह हरी सिंह को अपने घर ले जाता है, उसे पढ़ना लिखना सिखाता है। वह उस पर विश्वास करता है, लेकिन हरी सिंह चोरी करने के लिए सही मौके का इंतज़ार करता है। वह पैसे चुराता है और वहाँ से हमेशा के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे रोक देती है। वह अनिल के घर वापस आ जाता है क्योंकि वह पढ़ा लिखा और सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता है। अनिल भी उसे यह नहीं दिखाता कि उसे उसकी चोरी के बारे में पता चल गया है। इसके बजाय वो उसको स्वीकार करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अनिल, जो कि दिल का दयालु व्यक्ति है, हरी सिंह के जीवन को सुधार देता है। Now, students, I'll tell you the story of this chapter. The narrator of this story is a thief. He tells his name Hari Singh. It is his false name because he changes his name every month so that he can be saved from his former employers and police. The narrator met Anil in a wrestling match. Anil was a young man of 25 years old who wrote for the magazine and earned money to run his life. The narrator was 15 years old. He was an experienced thief. He was looking for a chance of stealing. Then he met Anil in a wrestling match. He conversed with him and asked for work, but Anil didn't have much money to pay him. Then he asked whether he could feed him. Anil asked if he could cook. Hari Singh lied that he could cook. Anil took him to his room over the Jumna sweet shop. Anil made him sleep in balcony. Hari Singh cooked food for him, but Anil did not eat and gave all to dog. It was clear that the food cooked by him was tasteless. He had to buy the day's supplies. In that, he made a profit of 1 rupee daily. Anil was somewhat aware of it, but he didn't mind. They both lived happily. The narrator made tea in the morning. They both drank happily. इस कहानी का जो नरेटर है यानी वर्णन करता, वो एक चोर है और वह अपना नाम हरी सिंह बताता है। यह उसका झूठा नाम है क्योंकि वह हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि वह अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर्स और पुलिस से बच सके। नरेटर अनिल को कुश्ती के मैच में मिला। अनिल 25 इयर्स का एक यंग मैन था जो कि मैगजीन के लिए लिखता था और अपना जीवन चलाने के लिए पैसे कमाता था। नरेटर 15 इयर्स का था और वो एक एक्सपीरियंस चोर था और वह हमेशा जो है चोरी करने के मौके तलाश करता रहता था। तभी वह उसकी मुलाकात अनिल से होती है कुश्ती के मैच में और उसने उसके साथ बातचीत करनी शुरू की और उससे काम के लिए पूछा। लेकिन अनिल के पास उसे देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। तब उसने उससे पूछा क्या वह उसको खाना खिला सकता है। अनिल ने पूछा कि क्या वह खाना बना सकता है। हरी सिंह ने झूठ बोला कि हाँ, वह खाना बना सकता है। अनिल उसे जो है जुमना जो मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर अपने कमरे में ले गया। अनिल ने उसे बालकनी में सुलाया। हरी सिंह ने उसके लिए खाना बनाया, लेकिन अनिल ने खाना नहीं खाया और सारा खाना कुत्ते को दे दिया। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि खाना जो उसने बनाया था वो बिल्कुल टेस्टलेस था और रोज़ाना की चीज़ें खरीदने के लिए उसे जाना पड़ता था हरी सिंह को और वो रोज़ाना 1 रुपये मुनाफा कमा लेता था। अनिल को इस बारे में कुछ पता था, लेकिन वह बुरा नहीं मानता था और वो दोनों खुशी-खुशी रहते थे। नरेटर ने सुबह की चाय बनाई और वो दोनों खुशी से चाय पीते थे।
After 1 month, the narrator thought that he had not stolen a single thing from Anil's house. Anil had trust on him and had given him the key of his room also. He could come and go according to his own. He was the most trusting person that he had ever met, so it was very difficult to rob him. 1 महीने बाद नरेटर ने सोचा कि उसने अनिल के घर से एक चीज़ भी नहीं चुराई। अनिल को उस पर पूरा विश्वास था और उसने उसे अपने कमरे की चाबी भी दी हुई थी और वह अपनी मर्जी के अनुसार वहाँ पर आ जा सकता था और वह सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था जिसे वह पहले कभी इससे पहले मिला होगा, इसलिए उसे लूटना बहुत मुश्किल था। One day, Anil brought a bundle of notes and kept it under the mattress in the presence of Hari Singh. The narrator thought he had not done his business for some time, and it was the right time to do. He thought if he didn't take the money, Anil would waste it with his friends, and after all, he did not pay him. So it was right to steal. He waited for opportunity. He saw Anil asleep and slipped his hand under the mattress and took money. He thought to catch 10:30 express to Lucknow and went out from there forever. He held the notes by the string of his pajamas. एक दिन अनिल नोटों का बंडल लेकर आया और उसने हरि सिंह के प्रेजेंस में उसे गद्दे के नीचे रख दिया। नरेटर ने सोचा कि उसने काफ़ी समय से चोरी नहीं की है और यह सही समय है चोरी करने का। उसने सोचा कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो अनिल उसे अपने दोस्तों के साथ बर्बाद कर देगा और आखिरकार उसने उसकी जो है सैलरी भी नहीं दी थी, इसीलिए यह चोरी करना सही था। उसने मौके का इंतज़ार किया। उसने अनिल को सोया हुआ देखा और अपना हाथ गद्दे के नीचे खिसकाया और पैसे निकाल लिए। उसने लखनऊ के लिए 10:30 की जो गाड़ी थी पकड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने की सोची। उसने नोटों को अपने पायजामे का जो नाड़ा था उससे उसको बांध लिया। He came to the road and counted the notes. There were 600 rupees in 50s. He was happy to see it. Then he reached the station but did not buy the ticket as he had never bought. He saw the train on the platform. It was about to go, but he did not catch it. His conscience made him stop. He listened the voice of his conscience not to betray the faith of Anil. The train had left and he was lonely on the platform. He did not know where to spend night. He started thinking about man's reactions when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, and the poor showed acceptance. But Anil would show only a touch of sadness. This would not be for the loss of money but for the loss of trust. वो सड़क पर आ गया और उसने नोटों को गिना। वो 50-50 के नोट थे, 600 रुपए थे वो टोटल, और उन्हें देखकर वो काफ़ी खुश था। तब वह स्टेशन पर पहुंच गया था, लेकिन उसने टिकट नहीं खरीदा, जैसा कि उसने कभी भी नहीं खरीदा था। टिकट वो कभी नहीं खरीदता था। उसने प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी देखी। वो जाने वाली थी, परंतु उसने गाड़ी नहीं पकड़ी। उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक दिया। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी कि वह अनिल के विश्वास को ना तोड़े। गाड़ी जा चुकी थी और वह प्लेटफॉर्म पर अकेला था। उसे नहीं पता था कि वो रात कहाँ गुजारे। उसने लोगों की जो है रिएक्शंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया जब वे अपनी चीज़ों का नुकसान उठाते हैं। लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है और गरीब आदमी उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन अनिल केवल थोड़ी सी उदासी ही दिखाएगा। वह पैसे की हानि नहीं, पैसे का नुकसान के कारण नहीं, बल्कि विश्वास खो जाने के कारण। The narrator's mind was full of conflict. He found himself in the Maidan and sat down. It was early November and there was drizzling. He went under the clock tower and it showed midnight. He thought about notes and took out and found them wet. He thought that Anil had taught him how to read and write. Now he won't be able to learn and cook food for him. Writing could bring him more than a few hundred rupees. It was simple to be a thief and to be caught, but to be a really big respectable man was something else. These thoughts led him back to Anil's house. He was nervous and crept again secretly to his room. Anil was still asleep. He kept the money back under the mattress. नैरेटर के मन में द्वंद्व चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसने अपने आप को मैदान में पाया और वहाँ पर वो बैठ गया। ये नवंबर की शुरुआत थी और बूंदाबांदी हो रही थी।
वह घंटा घर के नीचे चला गया और इसने आधी रात जो है वो शो कर रहा था उसमें। उसने नोटों के बारे में सोचा और बाहर निकाला और उन्हें गीला पाया। उसने सोचा कि अनिल ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और अब वह यह सब नहीं सीख पाएगा और उसके लिए खाना भी नहीं बना पाएगा। लिखना उसे कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा आगे बढ़ा सकता था। एक चोर बनना और पकड़े जाना साधारण बात थी, सिंपल थिंग थी, लेकिन वास्तव में एक बड़ा सम्मानीय व्यक्ति बनना, इज्जतदार इंसान बनना कुछ और ही था। ये विचार उसे अनिल के घर वापस ले गए। वह परेशान था और उसके कमरे में चुपके से रेंगता हुआ चला गया। अनिल अभी सोया हुआ ही था। उसने पैसे वापस गद्दे के नीचे रख दिए। The next morning, Anil woke up early. He made tea. He had 50 rupees in his hand. He gave 50 rupees to the narrator by saying that he would be paid regularly now. The narrator took the note and found it wet and understood that Anil must have known about the episode of that night. अगली सुबह अनिल जल्दी उठा। उसने चाय बनाई और उसके हाथ में 50 रुपए का नोट था। उसने नरेटर के हाथ में 50 रुपए का नोट देते हुए कहा कि अब वो उसे रेगुलर सैलरी देगा। नरेटर ने नोट लिया और उसने पाया कि वो नोट गीला था और वो समझ गया कि अनिल को उस रात के किस्से के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन उसने ये बात नरेटर के ऊपर जाहिर होने नहीं दी।